पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली दौरे पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ पंजाब की आम आदमी पार्टी इशारों इशारों में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस राज्य की जनता के साथ केवल छलवा बता रही है। सीएम भगवंत मान के दिल्ली दौरे पर केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल का काम किस तरीके से किया जाता है। उन सबका हम स्वागत करते हैं। अभी उन्होंने ये स्कूल देखा, ये बताएंगे मतलब ये एजुकेशन ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਐਸੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਓ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢੋ, ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਿਉਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਟਸ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੂਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲकुल हेल्थ ਤੇ एजुकेशन मिनिस्टर भी आए ने, ऑफिसर्स भी आए। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में पहुंचने के बाद सीएम भगवंत मान को बताया कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को कैसे बेहतर किया है, किन कमियों को दूर किया है, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया है। स्कूलों के निरीक्षण के साथ ही भगवंत मान मोहल्ला क्लिनिक भी पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों की मदद से सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान को बताया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे काम करते हैं, यहाँ आने वाले लोगों को बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, साथ ही किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है। इधर भगवंत मान के दिल्ली दौरे को लेकर पंजाब बीजेपी के चीफ स्पोक पर्सन अनिल सरीन ने कहा कि सीएम दिल्ली से आकर आवाम को सच जरूर बताएं कि कैसे दिल्ली टीचरों और डॉक्टरों की कमी है। पंजाब के चुनाव में भगवंत मान को भारी जीत मिली, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने किए हुए वादों को पूरा करने की बात कही।
अब भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ सोमवार को स्कूल पहुंचे हैं, जिससे कि वो दिल्ली इस मॉडल को समझ सकें और पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट हो सके। भगवंत मान जी अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के दौरे पर गए हैं, जहां पर वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को स्टडी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं कुछ चीज़ अच्छी मिलती हो तो उसको स्टडी करना चाहिए और उसको आकर स्टेट में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन मेरी भगवंत मान जी से एक प्रार्थना है कि आप ईमानदारी से, ये ना हो कि एक और 2 स्कूल जो उन्होंने दिखाने के लिए बनाए हुए हैं उनको आप विजिट करके आए। दिल्ली में 12,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं, आप उनको विजिट करके आइए और आकर पंजाब की जनता को बताइए कि दिल्ली में स्कूलों में कितने स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, कितने स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है और दिल्ली में कितने शिक्षक के पद खाली हैं और कितने जो है वो एडहॉक पर रखकर, टेम्परेरी टीचर्स रखकर शिक्षा को चला रहे हैं, स्कूलों को चला रहे हैं। ये पंजाब की जनता को आकर जरूर बताएं। इसी तरह जहां तक मोहल्ला क्लिनिक का सवाल है, मेरी भगवंत मान जी से एक प्रार्थना है कि आप आकर पंजाब की जनता को अवश्य बताएं कि केजरीवाल जी ने कितने मोहल्ला क्लिनिक खोलने थे, कितने खुले, उनमें से कितने चल रहे हैं, उनमें से कितने बंद हैं, वहां पे कौन कौन सी दवाई दी जाती है और वो कितने समय तक खुलते हैं, उनकी वस्तुस्थिति क्या है। ये पंजाब की जनता को आकर ईमानदारी से जरूर बताएं, क्योंकि पंजाब, और एक चीज मेरी और प्रार्थना है उनसे कि पंजाब का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, दिल्ली जो है वो शहरी क्षेत्र है। ठीक है, उसमें कुछ गांव भी लगते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप उन गांवों में जाकर भी मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों की व्यवस्था को जरूर देख कर आए कि वहां पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि पंजाब की अधिकतर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, वो ग्रामीण क्षेत्र में आपको काम करना है। सो इन सब चीजों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि भगवंत मान जी आप ईमानदारी से आकर पंजाब की जनता को जरूर बताएंगे कि वहां पर स्कूलों की व्यवस्था क्या है और मोहल्ला क्लिनिक्स की व्यवस्था क्या है। देखिए, जहां तक इसके लाभ की बात है, अगर आपको अपना घर का मालूम हो, उसके अध्ययन के बाद आप किसी दूसरे स्टेट से जाकर अध्ययन करें और फिर उसका कंपैरिजन करें कि उसमें से कौन सी अच्छी चीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर तो उसका लाभ होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भगवंत मान, उनका मंत्रिमंडल पंजाब में इस समय वस्तुस्थिति क्या है शिक्षा की, इसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया, इसकी स्टडी नहीं की और सीधा दिल्ली मॉडल को स्टडी करने चले गए। भाई, पहले पंजाब की वस्तुस्थिति से जान लीजिए, क्योंकि आप सब लोग पंजाब की राजनीति और पंजाब के सिस्टम में नए हैं। पहली बार आप चुनकर सरकार में आए हैं। पंजाब ऑलरेडी 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे है। 5,000 करोड़ आपने 1 महीने में और कर्जा ले लिया। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी। केवल एडवर्टाइजमेंट देने से, हर दिन फुल पेज की अखबार में ऐड आ रही है सारे हिंदुस्तान में, हर 15 मिनट बाद भगवंत मान जी की ऐड आ रही है चैनल्स के ऊपर, एक तरफ हमारी जेब खाली है, हम कर्ज के डूबे पड़े हैं, दूसरी तरफ आप कर्जा लेकर अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगे हैं। यह साफ दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस तरह से सरकार को चलाना है, किस तरह से प्रदेश को चलाना है, इस बात से अनभिज्ञ है और केवल आपको अपनी पॉपुलैरिटी, अपना प्रचार करने के अलावा और कुछ नहीं है। आपने 1 महीने में केवल और केवल घोषणाएं की हैं और ग्राउंड के ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, कोई आपका इफेक्टिव जो वर्किंग है, जो आपने वादे किए थे, चाहे 300 यूनिट बिजली का हो, बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का हो, चाहे जो कच्चे एडहॉक पे और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉइज हैं उनको पक्का करने का हो, चाहे महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने का हो, चाहे 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का हो, इन सब के ऊपर आपने अभी तक काम भी शुरू नहीं किया, केवल घोषणाएं की हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।